बंद करूँगा। आणि म्हणूनच युवा मेळावा 2014च्या समन्वय समितीचे सल्लागार प्राचार्य दिनेश मंजवानी सर यांनी या कार्यक्रमाचं सूत्र उलगडून दाखवावं अशी मी त्यांना विनंती करते. आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है.
दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। On this day, Swami Vivekananda ji was born. At a very young age, he attained the prestige by himself and enhanced the prestige of the country which was slave at that time. And one very important aspect which Vivekananda ji has said, Sanyam and discipline. And I'm sure that on this day, all of us should pledge that we will take our country ahead with Sanyam and discipline. We welcome today's chief guest, Dr. Ved Prakash ji, and the inspiration of this whole program, our Vice Chancellor. साउंड मिल रहा है? Friends, this Yuva network has been initiated last year, through which we are making the students of district colleges and the Mumbai colleges should interact with each other. Last year we initiated with 50 colleges. This year, this 50 colleges has become 100 colleges, and next year it may become the 200 colleges. The next step of this program is that the colleges which has visited Mumbai on the invitation of Mumbai colleges should now invite the Mumbai colleges to their own district and educate the Mumbai students on what is happening in the district colleges. Friends, अभी हमने गीत सुना, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। ये दो पंक्तियां आप मेरे साथ दोहराइए इतनी जोर से कि पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई गूंज उठे और मालूम पड़े कि यहाँ पे एनएसएस के, एनसीसी के, एडल्ट एजुकेशन के, स्टूडेंट यूनियन के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ ये दो पंक्तियां दोहराइए। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, पर दुनिया ऐसे नहीं बदलती है जब तक आप में संयम और डिसिप्लिन नहीं है। ये दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, और यही आपको यहाँ पे सोचने का है और देखने का है। अब आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम हमारे स्पीकर्स को जो आज आपको संयम और डिसिप्लिन सिखाने आए हैं, हम उनको सुनेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मी विद्यार्थी कल्याण विभागाचे संचालक डॉक्टर मृदुल येळे यांना डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र या आजच्या आपल्या प्रमुख वक्त्यांचा परिचय करून द्यावा अशी विनंती करते। हटो सामने से हटो। Friends, today I have a very difficult task of introducing one of the most eminent learned scholar, researcher, a medical practitioner, doctor, and a finest human being. He is currently the Vice Chancellor of Datta Meghe Institute of Medical Sciences, a scholar and a great administrator who has taken this institute to newer heights. As a researcher, he has been conferred upon the fellowship by the Indian Medical Association, New Delhi. He is a recipient of many awards, some of them being Vigyan Jyoti Award, Shiksha Bharati Puraskar, National Award for Medical Education and Research instituted by the Indian Medical Association. This man is a multifaceted individual, a man with a social commitment, and was awarded the Vidarbha Gaurav Puraskar in 2007. He is also a recipient of Lifetime Achievement Award by the World Management Congress for the service in the field of education. For today's program, that is the Yuva Divas, he is rightly called because he has some unique distinctions of achieving certain heights at a very young age.
He has the honor of being elected as the youngest ever teacher member to the Senate, Academic Council and Management Council of Nagpur University, Nagpur, from the teachers' constituency, respectively, and also one of its senior-most members as of now. He has the distinction of being elected as the youngest ever dean of the Faculty of Medicine, University of Nagpur. He has the distinction of being the youngest ever teacher member being elected as a medical council on the Medical Council of India, created by an Act of Parliament by maintaining and monitoring the standards of medical education in the country. He has the privilege of being the first medical doctor teacher from the state of Maharashtra to be elected to the highest post of Chairman, Postgraduate Medical Education Committee of Medical Council of India. He happens to be the only doctor to be nominated by the Government of India as a member on the Postgraduate Medical Education Committee. The first Indian medical teacher to be nominated on the Finance and Development Committee of International Association of Medical Regulatory Authority, which is an international organization with representatives of about 142 countries from all over the globe. So we have such an eminent personality with us, that is Dr. Ved Prakash Mishra. Thank you. धन्यवाद सर. मी मुंबई विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू डॉक्टर राजन वेळुकर यांना विनंती करते की आजच्या आपल्या प्रमुख वक्त्यांचं डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रा यांचं त्यांनी मुंबई विद्यापीठाचं कॅलेंडर, डायरी आणि प्रेमाचं प्रतीक म्हणून फुलझाड देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद सर. स्त्री सक्षमीकरण, सबलीकरण या विषयावर डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्र यांनी युवकांना मार्गदर्शन करावं अशी मी त्यांना नम्र विनंती करते. मुंबई विद्यापीठ के तत्वावधान में युवा दिवस के इस महत्वपूर्ण आयोजन में परमादरणीय अध्यक्ष, मुंबई विद्यापीठ के माननीय कुलगुरु, मेरे परम मित्र अनुज भाई राजन वेलुकर जी, आदरणीय मंच, आदरणीय आमंत्रित और मेरे वतन के मालिकों, आपके बीच इस पवित्र दिवस पर तकरीर करने का मौका आपने दिया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मित्रों, स्वामी विवेकानंद का स्मरण एक औपचारिक संदर्भ नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे निष्ठा की बुनियाद नहीं होगी, वैचारिक सोच का धरातल नहीं होगा, प्रामाणिकता को स्वीकार करने की मानसिकता नहीं होगी, राष्ट्र निर्मिति का संबल नहीं होगा, चरित्र का अनुष्ठान नहीं होगा और औचित्य की मानसिकता नहीं होगी, हम स्मरण के योग्य नहीं होंगे। मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंतर्गत परिवर्तन का सैलाब अगर कहीं से शुरू होता है, किसी शाही ने अगर परिवर्तन के सैलाब को लिखा है तो उस शाही को लिखने वाला सैलाब हमेशा युवा मन ही रहा है। यह दुनिया का इतिहास है। लोग जब मुझसे पूछते हैं कि युवा कौन, आपने बदलने की बात की, बदलवाने की बात की। साहिर लुधियानवी से अध्यक्ष महोदय पूछा गया कि युवा कौन? साहिर लुधियानवी ने 4 पंक्तियों के अंतर्गत युवा की व्याख्या को व्याख्यात कर डाला। आप किसे युवा कहेंगे? कौन युवा? युवा होने का संदर्भ, युवा होने का औचित्य, युवा होने का मानदंड और युवा होने का मापदंड 4 पंक्तियों के अंतर्गत साहिर लिखता है कि बदले दिन रात मगर हम नहीं बदले,
बदले दिन रात मगर हम नहीं बदले, बदली हर बात मगर हम नहीं बदले, वक्त को खुद बदल दिया हमने, वक्त के साथ कभी हम नहीं बदले। उस औकात, मित्रों, उस औकात, उस कैफियत, उस काबिलियत का नाम युवा है। परिवर्तन की आराध्य शिला युवा है, परिवर्तन की सोच युवा है, परिवर्तन का मानदंड युवा है और परिवर्तन का मापदंड युवा है, क्योंकि इंसानी जिंदगी के अंतर्गत परिवर्तन का सैलाब उसी से शुरू होता है, वही उसका आगाज होता है और वही उसका अंजाम होता है। उसका मूल कारण यह है कि उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती। नथिंग इज इम्पॉसिबल in that intonation in which he is wanting to indoctrinate himself with a sense of purpose, with a sense of motive, with a sense of definition, with a sense of articulation, with a sense of precision and with a sense of that perfection which he construes to be his legitimate right. उस अधिकार की बुनियाद है मित्रों, और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि युवा अपने आप को शोध कर, अपने आप पर विचार कर, अपने आप से अंतर्मुख होकर अपने आप को सबसे पहले पहचानने का प्रयास करें। मैं अत्यंत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, कल ही का निवेदन मैं नागपुर के अंतर्गत एक युवा सम्मेलन को अध्यक्ष जी संबोधित कर रहा था। मेरे संबोधन के बाद में एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा, काका तुम्ही जे बोललात ते अगदी योग्य बोललात, तुम्ही जे सांगितलं ते अगदी मनाला पडलं, तुम्ही जे निर्देशित केलं ते मनावरती अगदी कोरून गेलं आणि मनाला ते गवसलं सुद्धा, पण आम्हाला एक सांगा, एक बात का आप हमें बताएं कि आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, आप इतनी गंभीरता से बता रहे हैं, वैचारिक उन्नयन की दृष्टि से बता रही हैं, आप हमारा वय देख करके जरा बताइए, आप हमारी उम्र देख करके बताइए। मित्रों, कल उस मेरी बिटिया का प्रश्न मेरे मन के अंतर्गत अंकुरित थे, उस प्रश्न का उत्तर लेकर के मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। युवा मन जब कहता है की आमचं वय पाहून बोला, अजून आमचं वय काय ते समजून बोला, ते जपून बोला, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, जो उम्र का तकाजा खड़ा करें वो युवा हो ही नहीं सकते। जो उम्र के तकाजे नहीं खड़े करते, उम्र के तकाजे अगर इतिहास के अंतर्गत मित्रों खड़े हो गए होते तो मैं जिम्मेदारी से आपसे पूछना चाहता हूं, 14 साल के ज्ञानेश्वर ने अगर उम्र के तकाजे के नाम पर उम्र का तकाजा खड़ा किया होता कि उम्र केवल 14 साल की है, हे ज्ञानेश्वरी लिहायचं वय नहीं, दुनिया को सब कुछ मिल गया होता, ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वरी न मिली होती। 16 वर्ष की पन्नादाई के मन के अंतर्गत सवाल खड़ा हो गया होता कि 16 वर्ष की उम्र नौजवानी की उम्र है, इसके अंतर्गत अपनी संतान को कटवा करके राष्ट्रभक्ति का निर्वहन नहीं हो सकता, सब कुछ मिल गया होता, लेकिन देश को पन्नादाई का त्याग न मिला होता। 23 वर्ष के भगत सिंह ने अगर सवाल खड़ा किया होता कि उम्र केवल अभी 21 है और 21 साल की उम्र के अंतर्गत अभी तक प्रेयसी का दामन नहीं चूमा, उसके पहले फांसी का फंदा कैसे चूम लूं, अगर ये सवाल उसके सामने खड़ा हो गया होता, सब कुछ मिल गया होता। भगत सिंह का 26 वर्ष के चंद्रशेखर आजाद के जहन में केवल एक सवाल पैदा हो गया होता कि वह केवल 26 है और 26 वर्ष का वह 36 गोलियां सीने पर झेलने का नहीं होता। मित्रों, सब कुछ हो गया होता। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, जो तकरीर करना चाहता हूं, विवेकानंद के इस पावन संस्मरण के साथ जिस बात को मैं आपसे जोड़ना चाहता हूं वो ये कि जिंदगी की यह दहलीज निष्ठा की दहलीज है। जिंदगी का ये उत्साह प्रामाणिकता का उत्साह है। जिंदगी की ये उमंग हिमालय को स्पर्धित करने की है और जिंदगी के अंतर्गत ये तरंग कुछ कर गुजरने की क्षमता है। कौन सा प्रश्न उम्र? यही वो उम्र है जिस उम्र के अंतर्गत आपको दुनिया की तकदीर को बदलने का मादा अपने जहन के अंतर्गत स्थापित करना है। लेकिन इसके लिए स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा लेते हुए सबसे पहले आपको आत्मशोध करना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। मैं आपके सामने अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से 2 परिभाषाओं को रखना चाहता हूं जो स्वामी जी ने एक एक पंक्ति के माध्यम से निर्धारित की। दोनों परिभाषाएं एक जैसी लगती हैं, दोनों के निर्धार एक, दोनों का स्वरूप एक, केवल एक शब्द का फर्क अगर दोनों में कर दिया जाए तो दोनों कदाचित एक ही जैसी लगती हैं। स्वामी जी ने शिक्षा की व्याख्या की, he defined education, and what exactly is the definition of education which Swami ji contemplated? He defines education as, quote, education is the manifestation of perfection already present in man, unquote.
first definition of the word education which he is contemplating is, education is the manifestation of perfection already present in man. Ladies and gentlemen, I am wanting to put across the second definition which he has put of the word religion, and the entire context of definition is ad verbatim to what he has defined as education. He defines religion as, religion is the manifestation of divinity already present in man. Please try to articulate at these two significant definitions. इन दो व्याख्याओं पर आप गहराई से थोड़ा सा समय के साथ विचार करने का प्रयास करें। इन दोनों परिभाषाओं को एक साथ अगर मैं जोड़ करके आपके सामने रखता हूं, अगर एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन and religion is the manifestation of divinity already present in man, then Chairman sir, I would like to put a hypothesis to this young gathering on the day of this Yuva Divas, and that is, इसका मतलब ये है कि there are two things which are already present in man. One is perfection and second is divinity. Therefore, Yuva is meant for divine perfection of life, and that is the connotation which I got. युवा बना इसके लिए, किसी ने बहुत सुंदर शब्दों के अंतर्गत कहा कि युवा इस शब्द के अंतर्गत ही सब कुछ है। आप युवा इस शब्द को उल्टी तरफ से पढ़ करके देखें, आपको नया फलसफा मिल जाएगा। जब इधर से पढ़ो तो युवा है और उधर से पढ़ो तो वायु है। जो वायु है वही युवा है। उस चिंतन को मैं आपके साथ, वायु जैसा गतिमान हो, वायु जैसा तेज हो, वायु जैसी क्षमता हो, वायु जैसा गंतव्य हो और वायु जैसा मंतव्य को निर्धारित करने का संकल्प हो, और वह संकल्प जो किसी विकल्प की तलाश में न हो, इन सारी चीजों को मिला करके बना दीजिए, युवा के अलावा और कुछ नहीं बनता। मैं 3 सवाल मित्रों आत्मशोध के, आत्मबोध के, आत्मचिंतन के, आत्म आकलन के, आत्म अनुमान के, आत्म संबोधन के और आत्म प्रमाण के आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं केवल 3 बातें निवेदन कर रहा हूं मेरे बच्चों। 1, जिंदगी के अंतर्गत किसी पर विश्वास करना न करना, इसकी चिंता मुझे नहीं है, परंतु मैं केवल एक स्मरण कराने के लिए आया हूं कि जिंदगी पर अगर किसी पर विश्वास करना तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना। जो अपने आप पर विश्वास करते हैं वे ही जमाने के अंतर्गत विश्वसनीय हुआ। बिलीव सेल्फ, अपने आप पर विश्वास करें, पर अपने आप पर क्या विश्वास करें, अपने आप पर कौन सा विश्वास करें, अपने आप पर कैसे विश्वास करें, इन संदर्भों का औचित्य महत्वपूर्ण है। एक अपने आप पर विश्वास करने की जो पहली विधा है वो ये कि आप इस बात पर विश्वास करें कि आप अपने आप में अनोखे हैं। यू आर यूनिक। आप जैसे आप ही हैं। कदाचित न इसके पहले हुआ होगा और न कदाचित इसके बाद होने की संभावना है। अपने यूनिकनेस पर विश्वास करें, एंड देयरफॉर द परफेक्शन व्हिच इज देयर इन मैन इज द एविडेंट फेथ इन सेल्फ that you are born unique. But then the question is, you and me may be born unique, but are we in a position to be demonstrate and manifest that uniqueness? That's a $1 million question. Being born unique is not sufficient. हर आदमी यूनिक है, लेकिन यूनिकनेस का शोध, यूनिकनेस का बोध, यूनिकनेस की पहचान, यूनिकनेस की सोच और यूनिकनेस के साथ में साक्षात्कार और सादात में ये सारी वस्तुस्थितियों का एकीकृत स्वरूप कहीं न कहीं आपको निर्धारित करना होगा। आप यूनिक हैं, इस बात पर आप विश्वास करें, पर आपका यूनिकनेस हाउ एग्जैक्टली इट इज रिक्वायर्ड टू बी मैनिफेस्टेड, how exactly it is required to be evident, how exactly it is required to be demonstrated, and that's a $1 million question which the youth is required to be contemplating for itself. आप यूनिक हैं, आप अभूतपूर्व हैं, लेकिन आप अपनी अभूतपूर्व होने की अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति तब होगी, अभिव्यक्ति तब संभव होगी जब अभिव्यक्ति का वह शोध करने का प्रामाणिक प्रयास होगा। वह प्रामाणिक प्रयास तब होगा, वह प्रामाणिक चिंतन तब होगा जब आत्मबोध और आत्मशोध करने की वृत्ति होगी। और इसलिए मैं आपसे 2 निवेदन करने के लिए खड़ा हूं कि आप अपने उस यूनिकनेस को प्रामाणिकता के साथ पहचानने का प्रयास करें,
उस यूनिकनेस को पहचान करके उसे स्वीकार करने का प्रयास करें, उसे स्वीकार करने के साथ उसे आविष्कृत करने का प्रयास करें। उसे आविष्कृत करने के प्रयास के अंतर्गत यू आर रिक्वायर्ड टू बी इंडोक्ट्रिनेटिंग योरसेल्फ विद दैट कनोटेशन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी डेमोन्स्ट्रेटिंग योर यूनिकनेस टू ऑल कंसर्न्ड। उस यूनिकनेस की विधा, उस यूनिकनेस का शोध स्वामी विवेकानंद ने किया, दुनिया के सामने उस यूनिकनेस को रखा और वह उनका व्यक्तिगत यूनिकनेस न होते हुए वह इस देश के अस्तित्व और इस देश की अस्मिता की यूनिकनेस के साथ मुखरित होकर के प्रतिपादित हुआ। हम उस दिवस के स्मरण के अंतर्गत आत्मशोध की विधा के साथ आपकी स्वीकृति के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। इस यूनिकनेस के प्रारूप किसी अगर आप मुझसे पूछें कि इस प्रमेय को आप कैसे स्थापित करेंगे, मेरे बच्चों में केवल दो चीजें आपके सामने रख रहा हूं। एक मैंने पढ़ी थी, 18 साल की उम्र के बाद जहां जहां आप हस्ताक्षर करते हैं आप अपने हस्ताक्षर के लिए जिम्मेदार होते हैं। यू बिकम अकाउंटेबल टू योर ओन सिग्नेचर। आप ये नहीं कहते कि वह आसस भी सिग्नेचर करून दिली होती, समजलं नाही म्हणून करून दिली होती। 18 साल की उम्र के बाद, एडल्टहुड के बाद आपकी सिग्नेचर आप जहां करते हैं आप उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मेरा बुनियादी सवाल मेरे बच्चों आपसे, हर 18 साल का नौजवान जब सिग्नेचर करेगा उस उम्र के बाद वो अपनी सिग्नेचर के लिए जिम्मेदार होगा, परंतु नौजवानी क्या सिग्नेचर करने के लिए है या नौजवानी अपने आप की गई सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में रूपांतरित करने के लिए है? ये बुनियादी सवाल है। इसके लिए है आप केवल अगर हस्ताक्षर के लिए पैदा हुए हैं तो हस्ताक्षर साधारण लोग किया करते हैं, लेकिन जिंदगी के अंतर्गत जो अनोखे हो जाया करते हैं, जो बिरले हो जाया करते हैं, जो आत्मशोध के साथ अंगड़ाई लेकर के खड़े होते हैं, जो आत्मबोध के आगोश के अंतर्गत स्थापित हो जाते हैं, वे हस्ताक्षर नहीं करते, उनके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ के अंतर्गत रूपांतरित हो जाते हैं। इस देश का युवा दुनिया की छाती पर ऑटोग्राफ करने के लिए खड़ा हो, ये उसकी अदावत है, ये उसकी काबिलियत है, ये उसकी कैफियत है, ये उसकी तकदीर है और मुझे कहने दीजिए यही उसकी तस्वीर है। मैं दूसरा निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आत्मशोध की इस विधा के अंतर्गत फिर मैंने एक वाक्य पढ़ा था, उस वाक्य का अर्थ अनर्थ के रूप में पहले प्रतिपादित हुआ, परंतु बाद में कालांतर के अंतर्गत जब समझा तो ऐसा लगा कम से कम अब अपने बच्चों को समझा देना जरूरी है। ऑस्कर वाइल्ड का एक वाक्य पढ़ा था, लाइफ इज अ सेंटेन्स। मराठीत भाषांतर केलं, आयुष्य हे शिक्षा आहे। कदाचित गलत सेंटेंस पढ़ा था, गलत ट्रांसलेशन हुआ। आगे का वाक्य यह था कि लाइफ इज अ सेंटेंस पंक्चुएटेड। जिंदगी एक वाक्य है, आप उसे पंक्चुएट करें। पंक्चुएशन के अनेक प्रारूप होते हैं, कहीं कॉमा लग जाता है, कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है, कहीं कोलन लग जाता है, कहीं हाइफन लग जाता है। जिंदगी अगर शिक्षा है और जिंदगी के अंतर्गत अगर जिंदगी वाक्य है और उसका पंक्चुएशन होना है तो जिंदगी कॉमा पर न रुक जाए। नौजवान वो नहीं जो कामा पर थम गए, नौजवान वो नहीं जो प्रश्नार्थक दायरे के अंतर्गत खड़े हो गए। नौजवानों की नौजवानी अपने आप की पंक्चुएशन के उस धरातल पर खड़ी होती है जब न वो कॉमा पर रुकती है, न फुल स्टॉप पर थमती है, न क्वेश्चन पर मार्क के दायरे से रुकती है। वह कॉमा और फुल स्टॉप की न होकर वो अपने आत्मशोध को इस तरीके से मुखरित करती है कि वो कॉमा की जगह कालांतर में इन्वर्टेड कॉमा की दावेदार और हकदार। कॉमा साधारणों की जिंदगी का विषय हुआ करता है। आप कॉमा और फुल स्टॉप के लिए पैदा नहीं हुए। इस देश की नौजवानी दुनिया की छाती पर उस मकाम को मुकम्मल करने के लिए है कि ताकि दुनिया उस नौजवानी को कॉमा और फुल स्टॉप की जगह इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत प्रतिपादित करेगी। लोग पूछते हैं कि इसका उदाहरण कैसे है, किस तरीके से यह प्राप्य है? यह केवल एक वैचारिक दृष्टिकोण से प्राप्य है। और वह वैचारिक दृष्टिकोण कैसे प्रतिपादित होगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, आप पंक्चुएशन की दृष्टि से आप विचार करें। मैंने आपके सामने केवल एक छोटा सा 2 शब्दों का अंग्रेजी का प्रमेय रखा और प्रमेय है कैन आई। अगर आप कैन आई लिखेंगे तो पंक्चुएशन मार्क विल बी क्वेश्चन मार्क। आप कैन आई के लिए पैदा नहीं हुए हैं,
आप ठीक अलग पर करके कह दीजिए कि कैन आई इज नॉट द इथॉस ऑफ माई लाइफ, कैन आई से मेरा कोई सरोकार नहीं। मैं तो इस कैन आई को आई कैन इस रूप में पढ़ता हूं, और जब मैं आई कैन के रूप में पढ़ लेता हूं तो कैन आई अपने आप में स्नातक होकर आई कैन की दुनिया में खड़ा हो जाता है। आई कैन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, I can is not a probability. I can is not just an emphasis. I can is an attitude which is required to be nurtured and developed in such an intonation that becomes the hallmark of your entire personality. You are not born to be just a personality. You are born to be a persona. That persona which is not expected to be glittering, but it is required to be illuminating, and that is the entire ethos and purpose of life. भाइयों और बहनों, मेरे मन का एक निवेदन है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। दुनिया के अंतर्गत आज हम और आप सिर्फ इसलिए यूनिक हैं कि हमारे पास में आज जो डेमोग्राफिकली स्पीकिंग युवा की पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे अधिक है। दुनिया का सबसे अधिक युवा देश अगर कोई है तो मां भारती का हिंदुस्तान है, और इसलिए दुनिया को अगर कहीं किसी से कोई आशा है तो मां भारती की गोद के अंतर्गत बसने वाले युवाओं से आशा है। हिंदुस्तान का युवा केवल राष्ट्रीय युवा न होकर अब वह अंतरराष्ट्रीय विधा का एकमात्र संकल्प है और एकमात्र आशा का केंद्र है। उसे अपने आप को निखारना होगा, उसे मुखरित करना होगा, उसे आंदोलित होना होगा, उसे अनुशासित होना होगा, उसे अनुशीलित होना होगा, उसे परिशीलित होना होगा, उसे दिग्दर्शित होना होगा। एक बृहद जिम्मेदारी के आईने आपके सामने खड़े हैं। आपको अपने आप को निहारना होगा, आपको अपने आप को निखारना होगा, आपको अपने आप को सजाना होगा और आपको अपने आप को संवारना होगा। इन सारी विधाओं के साथ संदर्भों के औचित्यों को समझकर, बुनियादी स्वरूपों के चिंतनों को अपने जहन के अंतर्गत बसाकर, मानसिकता के सारे संकेत रचनात्मकता की गोद में कैसे निर्धारित होंगे, उनके उत्तर देने का, उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का विश्वास आप अपने मन में पैदा करें। जब आह्वानों की अंगड़ाई के सामने उत्तर देने के लिए खड़े होंगे, मेरा दावा है दुनिया कहेगी यस दे केम, दे सॉ एंड दे कॉन्कर। वह दिग्विजय, वह परम विजय आपके माध्यम से संभव है। आप इसे कर सकते हैं, आपने किया है, यह किया जा सकता है। देश का इतिहास इस बात की गवाही देता है, और देश के इतिहास की प्रेरणा लेकर उस अंगड़ाई का स्वरूप एक नए चिंतन के माध्यम से, आपके माध्यम से मुखरित हो, यही आज के दिवस का प्रमेय है। मुंबई विद्यापीठ के तत्वावधान में इन सारे प्रयोजनों का जो सांकेतिक नियोजन है, प्रयोजन है, आयोजन है, उसकी मूल विधा यह है कि आप संस्कारित हों, आप अनुशासित हों, आप दिग्दर्शित हों, आप अपने आप को आईने के सामने जिस तरीके से खड़े होकर के आप देखते हैं, सजने और संवरने के लिए आप एक नई आईने को, एक जागतिक आईने के अंतर्गत अपने लार्जर देन लाइफ साइज रोल को पहचान कर उस आह्वान को निर्धारित करने के लिए निकले। जाते जाते अंतिम स्वरों में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं बच्चों, नौजवानी को आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को सजाने में जितना आनंद आता है, कदाचित इतना आनंद और किसी दूसरी चीज में हो ही नहीं सकता। आईने के सामने खड़े होकर के अपने सर की घनी राशि को सजाना और संवारना, कभी अपने लिए सजना और कभी कभी उनके लिए भी सजने के जो मौके होते हैं आनंददायी होते हैं। परंतु आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे बच्चों, आईने के सामने सजने वाली नौजवानी इस बात को ध्यान रखे कि आईने की मर्यादा है।